All right, guys. So because there is a lot of confusion, Sumbul's message was not very clear, but Farman's message is very clear Farman's thoughts for Sumbul is very clear, and it is still the same repeating. This guy जो भी लड़की के बारे में सोचता है वो सेम ही चीज सोचता है हर बार. It is very, if you see what he thinks about the girl is very consistent. She is surrounded by negative people. She is good. She should believe in herself. She can fight it. Her dreams can come true. This is a consistent, constant message that comes for this guy when we talk about what he is thinking about the girl. Okay. And the girl's message today, the girl's message for, the girl's reading for her thoughts on the guy is very confusing today. Actually, it is very clear till 3/4 where she is like, she doesn't want to, the girl's thought about the guy is that she has been thinking a lot about him, but now she doesn't want to be in this limbo, in this frustrated feeling, because she feels the resentment towards him for whatever this person has said or done in the interview or towards her father. She is not fine with it. She is complaining. She doesn't like it. She is not accepting it, but she is also not ready to think about, continuing to think about this whole thing, because she has been thinking about this a lot, considering the pros and the cons, why this, why that, matching all the puzzles. But she is not able to forgive him for whatever has happened, but she doesn't want to be in this stressful situation, carrying the baggage and the load anymore. Okay, so she now wants to keep away the baggage. In the last week's guidance for her, in the last week's weekly prediction also, we saw that she was thinking a lot about the guy. She was in her head. And in this week, or rather in this energy, we saw that she's done with all the thinking about the guy. And as the thinking is mostly fueled with resentment and complaining, and she's not able to forgive him, she doesn't want to think about him anymore. She wants to put across all the baggage aside. She wants some peace in her life. And the Emperor card is telling that yes, she has put the baggage aside. She has decided something on her relationship with the guy, and she has finally moved out of the Hanged Man position. Okay, she has moved out of the Hanged Man position. Hanged Man position, you remember the same energy of past week where she was thinking a lot about him, maybe trying to come to some conclusion. What should I do about this guy? He has been nice to me, but he has not been nice to my father. How can I forget my father? There was a lot of cacophony going on in her head. And you were asking, like, if she is thinking so much about the guy, why is she not doing anything? But yes, finally she has decided. This week she has decided that no, she still feels the resentment in her heart for what he has done, whatever he has said. She is not fine with it. She's not able to come to terms with what he has done, even though probably she considered that he has been nice to her and helped her and all that. But now she is kind of decided. The Emperor energy totally matches with her Empress energy this week for her weekly guidance. She has decided something on the relationship. She wants to move away. She wants some peace. She doesn't want to keep thinking about the same thing, which only hurts her and makes her angry. Okay, so this is, I gave a English translation roundup of her thoughts on the guy. Okay, so I'm not making another video for this. I just told you the entire thing. Now, just because things are not very clear, let me see, because what I saw, that what the girl is thinking about the guy is about, she wants to move on. 6 of Swords, she wants to move on. But what I feel is, as a healer, and also because I work with so many people, and we can all understand that resentment is a very strong energy. It is not only love that connects you. Love ही से आप connected नहीं रहते हैं. Hatred से इससे भी ज़्यादा आप connected होते हो. क्योंकि hatred में आप उसको गाली देते रहते हैं. You cannot forget that person. And especially, resentment. When you have resentment, you are complaining. You're not able to forgive. You are so energetically strongly connected, right? But it is very strange that even though this girl is feeling this way, which could be legitimate. I'm not judging anybody. I don't have to judge. I just have to read the cards. What I'm getting is that this guy continues to feel the same way for her. And that is strange, right? So I want to know, just for you guys to get a little more clarity, what is really happening in their relationship. Or I would rather take some other deck.
How about taking this one? Sorry. So एक चीज आपको पता चला है कि लास्ट वीक जो वो बहुत सारी चीज 7 ऑफ सोर्ड फिर से आ गया है एंड द एस ऑफ पेंटिकल. डू यू सी दिस लाउड एनर्जी? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वर टॉकिंग. आई थिंक दिस इज अ वेरी प्रेवलेंट एनर्जी. नहीं तो ऐसे नहीं आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा. अभी देखा है ना आपने, दिस इज द सेम एनर्जी गाइज. दिस इज द सेम एनर्जी. कैन यू सी दिस? ये 7 ऑफ सोर्ड का सेम एनर्जी आया है. आई थिंक आई हैव शफल्ड इट. ओके, where is that? I think I have shuffled that. This is the same energy, same energy. This is something definitely there. वहां पे कुछ गड़बड़ तो है, नहीं तो ऐसे एनर्जी रिपीट नहीं होगी. ऐसे एनर्जी रिपीट नहीं होगी. There is something that spirit guides are kind of telling here. 3 बार S7 of sword का आना cannot be a coincidence, I think. But why are these cards repeating like this? इतना strong synchronicity कैसे हो सकता है? What is happening? रुको देखूंगी मैं. This is Ace of Page of Pentacles. अभी यही कार्ड तो आया था यहाँ पे. ये देखो, ये सेम कार्ड है. और ये देखो, दोनों सेम कार्ड कैसे आ सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल दैट बोथ द कार्ड्स रिपीट लाइक दिस? ये यहीं पे है, ये यहीं पे है. ऐसे ही आया था ना, इस तरह से आया था. somebody stealing something from her and this is again repeating the same thing. she is holding something and somebody is kind of चुपचाप उसके तरफ बढ़ रहा है. द 7 ऑफ सोर्ड जो डिसेप्शन का कार्ड है, चोरी का कार्ड है, 3 बार रिपीट हुआ है वैसे. And this is like, how is it even possible that it comes same way? How can it come like this? Do you see this? Page of Pentacles, Page of Pentacles, 7 of Sword, 7 of Sword. बिल्कुल उसी स्टाइल में आया है. और अगर इस बंदे को इतना स्ट्रांगली लगता है तो मे बी देयर इज समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इज इट, बट दिस गाय फील्स और थिंक्स अबाउट दिस गाय थिंक्स दिस अबाउट हर. अब ये सच है क्या है, आई डोंट नो, बट इफ इट इज रिपीटिंग देयर कुड बी समथिंग. एंड साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज का कार्ड आया था विच इज टेलिंग दैट देयर इज, मे बी ही इज सीइंग साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज विच ही थिंक्स शी इज नॉट एबल टू सी इट. चलो ठीक है, अब मैंने तो कार्ड्स रीड कर दिए. ऑल राइट, सो लेट मी क्लेंस द कार्ड हियर. Hello everybody. I was charging my cards. Now I will shuffle with intention. God's guardians, angels, Archangel Michael, Spirit God, Spirit guides. Can we please know your angels? Can the fans please know what is happening in Aman and Sumbul's life? What we need to know about their relationship right now. We thank you so much for the divine guidance and blessings coming for the Farman and Sumbul who wants to know what is happening in their life. What is happening in Sumbul Farman's life? What we need to know about their relationship. Dear angels, what the fans need to know about Sumbul Farman's relationship at the moment. What fans need to know about Sumbul Farman's relationship at the moment. वर्ल्ड का कार्ड उस सुम्बुल वाले कार्ड में ये उल्टा आया था, पर यहाँ पे पॉजिटिव है.
what fans need to know about Sumbul Farman's relationship at the moment. We thank you so much for the divine guidance coming. Okay, again the same thing. Yes, upside down. Things are not really working fine in their relationship. Okay, ये वाला भी शफल करते वक्त आया था मुझे. Okay, so what is really happening? There is some five of wands. This is exactly what Farman was thinking about Sumbul. And when we ask what is happening, these people show up. यानी कि मुझे लगता है जो फामान ये बंदा जो देखता है ना, ये सही देख लेता है. जस्टिस उल्टा हो गया है. All right, what is happening in the relationship? Back of the deck में, let me check. Okay. What is happening in their relationship? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप यहाँ पे सेंटर में ही देखिए तो वर्ल्ड कार्ड इन रिवर्स है. शफल करते वक्त भी आया था, विच मीन्स दैट द स्पिरिट गाइज आर ट्राइंग टू शो अस दैट देयर इज समथिंग हैपनिंग इन देयर वर्ल्ड विच इज नॉट अलाइंड. कुछ तो सही उनके दुनिया में नहीं हो रहा है. वर्ल्ड का कार्ड उल्टा आ गया है. ये कुछ तो उनके दुनिया में सही नहीं हो रहा है. देयर इज समथिंग दैट इज हैपनिंग इन देयर रिलेशनशिप विच इज नॉट अलाइंड, आप बोल सकते हैं. या फिर आप बोल सकते हैं कि देर इज डिस्टर्बेंस इन द पैराडाइज. यू अंडरस्टैंड दिस? द वर्ल्ड इज अपसाइड डाउन. देयर वर्ल्ड इज नॉट हैप्पी. देयर वर्ल्ड इज नॉट फाइन. इंपॉर्टेंटली, क्योंकि इस वर्ल्ड के कार्ड में लड़की बस लड़की है. यूजुअली द वर्ल्ड के कार्ड में दोनों कपल होते हैं. गाय एंड द नो, एक्चुअली in this card they were a couple, I guess. But anyways, in this world card, the girl is there and she is upside down, and while she is very happy, she is not seeing that she is upside down. But this guy is seeing that she is upside down. Do you see this? Do you see this? The girl is happy and dancing. ये जो लड़की है ये बहुत खुश है. ठीक है. और एक मैसेज, इनके रिलेशनशिप में कुछ ठीक नहीं चल रहा है. द वर्ल्ड इज अपसाइड डाउन. उनके रिलेशनशिप का जो वर्ल्ड है अपसाइड डाउन है. थिंग्स आर नॉट हैप्पी डैपी, आप ऐसा बोल सकते हैं. बट दिस गर्ल इज हैप्पी. बट द थिंग इज दैट प्रोबेबली शी इज नॉट सीइंग कि वो, ये लड़की खुश है, बट वो ये नहीं देख पा रही है कि वो अपसाइड डाउन है. बट ये बंदा अपने सही वाइब्रेशन में है और ये देख सकता है. एंड इनफैक्ट ये बहुत अच्छे से देख भी रहा है. क्वीन ऑफ सोर्ड है, किंग ऑफ सोर्ड है. ये अपने दिमाग से, अपने शातिर, अपने बहुत ही बैलेंस्ड दिमाग से, यू नो, किंग ऑफ सोर्ड इज वेरी बैलेंस्ड एंड ही इज वेरी स्मार्ट विथ हिज इंटेलेक्ट एंड इंटेलिजेंट. यू कैन नॉट फूल हिम. एंड द वे ही इज सिटिंग एंड द वे ही इज सीइंग, he can see that this girl is upside down. Even though she is dancing and she is happy, he knows that whatever is surrounding her is not good. So this is what is really happening in the relationship. And this is bullseye, spot on, because we have just checked what our Farman's thought about the girl. And was he thinking the same thing? Exactly, he is thinking the same thing. So yes, this is at the center of their reading. Okay, what is happening? Relationship में तो misalignment है, but this guy is able to see what is happening with the girl. Girl is in her own world, but she is upside down. Back of the deck में 3 of Pentacles का कार्ड है, which means that most of the इनके relationship में the major energy जो है कि they are busy with their work. आई मीन पर्सनल लाइफ में कुछ खास नहीं हो रहा है. ये तो सोच रहा है, वो अलग बात है कोर में, लेकिन बेसिकली ज़्यादातर वर्क लाइफ से ही रिलेटेड हर चीज़ें हो रही हैं. मोस्टली एवरीथिंग इज रिलेटेड विथ वर्क लाइफ ओनली. ओके, सो दिस इज हैपनिंग एट द सेंटर ऑफ द रीडिंग. सबकॉन्शियस में, यू नो, द रिलेशनशिप इज लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग. looking forward to something. Relationship is looking forward to something, as if की प्लानिंग स्टेज में है. यू नो, अभी भी जैसे कि सुम्बुल का रीडिंग अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपको क्या पता चला? उसमें ये पता चला है कि यस, शी हैज डिसाइडेड समथिंग अबाउट द रिलेशनशिप एंड शी वांट्स टू मूव आउट, शी वांट्स टू मूव ऑन, एंड शी इज स्टिल कंप्लेनिंग, शी इज स्टिल नॉट हैप्पी. तो इस तरह की एनर्जी है. तो वो मूव ऑन भी करना चाह रही है और फिर कहीं से वो एक रिसेंटमेंट से ही बोलो, पर फिर वो कनेक्ट हो गई है जाके उससे. तो वो चीजें हैं. तो
Yes, with all this upside down energy, looks like, the justice is not possible for this couple. Hang on, this looks like, this is not exactly what is happening, but this is looking like. Okay, तो ये जस्टिस जो अपसाइड डाउन है, ये एनर्जी है अराउंड द रिलेशनशिप. ये आप लोगों की एनर्जी हो सकती है जो कि 3D के चीज़ों को देख के बनती है कि अब तो लगता है कि जस्टिस पॉसिबल नहीं है. दिस इज द होप एंड फियर्स ऑफ द रिलेशनशिप. जिस तरह से चीजें हो रही है ना, जैसे कि वर्ल्ड इज लाइक, अब वर्ल्ड इज अपसाइड डाउन को बहुत ज्यादा आप लोग एग्जैजरेट मत कर दो. इसका मतलब ये है कि मिसअलाइनमेंट है और ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप काइंड ऑफ, आई डोंट नो इफ इट मीन्स काइंड ऑफ कि फुल सर्कल नहीं आ पा रहा है ऐसा करके, या फिर रिलेशनशिप जो बोलते हैं ना कि मुकम्मल नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, इस तरह की एनर्जी है. तो टेक इट ईजी इज व्हाट आई एम टेलिंग. एंड यस, बिकॉज देर इज दिस काइंड ऑफ कि अचानक से आई थिंक इस तरह की सिचुएशन बन गई है जहां पे ऐसा लग रहा है कि देयर रिलेशनशिप विल नॉट कम फुल सर्कल. ओके, एंड ऑफ कोर्स इस तरह की चीजें हो गई हैं तो पीपल डेफिनेटली फील कि देयर इज नॉट जस्टिस इज नॉट हैपनिंग इन देयर रिलेशनशिप. क्योंकि यहाँ पे जब आपको लग रहा है कि इनका जो रिलेशनशिप है फुल सर्कल नहीं आ पाएगा, तो डेफिनेटली लोगों को क्या लग रहा है, फियर हो गया है कि ये तो जस्टिस नहीं है, ये तो नहीं हम चाहते थे, ये क्या हो रहा है ऐसा करके. होप्स एंड फियर्स में वो हो गया है. होप्स में क्या आ गया है, फियर. what is the energy around this energy, like what are people's feelings around energy? People's feeling around this relationship is कि ये तो justice नहीं हो पा रहा है. I hope you get it what I mean. And this card is again very well aligning with this card in the environment. Environment में क्या है, इस relationship के environment में क्या है, disappointment. As if, and this is kind of 5 of cups का card है, and this is a grieving का card. So actually, yeah, there is a little heavy energy. I wouldn't deny that. But I just told you guys to take it easy because you guys really go, आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इसीलिए मैंने बोला टेक इट ईजी. ओके, पॉजिटिव वाइब भेजिए, सब चीज़ ठीक हो जाएगा. तो टेक इट विथ मेच्योरिटी. तो एनीवेज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिकली एक एनर्जी जो उनके रिलेशनशिप के अराउंड है, वो ये है कि लग रहा है कि ये रिलेशनशिप फुल सर्कल नहीं आ पाएगा. द मेजर एनर्जी अराउंड देयर रिलेशनशिप राइट नाउ इज दैट ऑफ अ वर्ल्ड इन रिवर्स, वेयर यू फील दैट दिस रिलेशनशिप विल नॉट कम फुल सर्कल. ओके, now mostly because of the girl. Okay, because the girl is dancing, but what she is not seeing is that she is upside down. Okay, she is not in her full avatar, she is upside down. But the guy, being a king of sword, is not only seeing her but is also wondering ki how can I, I mean, I see everything but I'm not able to help her or something like that, right? Okay, with all these things, the energy gone upside down, the chances of maybe it will not come full circle, energy relationship पूरा मुकम्मल नहीं होगा. तो इस कारण से जो एनर्जी इस रिलेशनशिप की हो गई है, वो लग रहा है कि जस्टिस नहीं होने वाला है. जस्टिस नहीं होगा क्या, ऐसा तो आप लोग खुद ही लिख रहे हो ना आजकल, जस्टिस नहीं होगा शायद. और इस कारण से जस्टिस नहीं आपको लग नहीं रहा है कि ये रिलेशनशिप सही होगा, जस्टिस होगा. तो क्या हो गया है, इस रिलेशनशिप के अराउंड जो एनर्जी है ना, वो बहुत सैड एनर्जी हो गई है, डिसअपॉइंटिंग एनर्जी हो गई है, एक लॉस की एनर्जी हो गई है, एक ग्रीविंग एनर्जी हो गई है. जैसे कि कोई चीज हाथ से छूट गई है, अब वो जस्टिस नहीं मिलेगा, वर्ल्ड अलाइनमेंट हो गया. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. परफेक्ट. इस रिलेशनशिप का एटीट्यूड क्या है, नाइट ऑफ सोर्ड इन रिवर्स. आई थिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो रहे हैं. नाइट ऑफ सोर्ड एक फास्टेस्ट मूविंग नाइट होता है, तो डेफिनेटली इनकी एनर्जी नाइट की है. तो नाइट की एनर्जी जो रिलेशनशिप की आई है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि बहुत ही इमेच्योर. नाइट्स आर वेरी हॉट, नाइट्स आर वेरी पैशनेट. They are fast moving, they have a lot of energy, enthusiasm, but they are also immature, right? They are not king, queen. नाइट तो नाइट ही है, उसको अभी बहुत मेच्योरिटी की ज़रूरत है. अभी बोलते हैं ना कि जवान खून है, बहुत गर्म खून है, तो आप दिमाग से सोच समझ के काम नहीं लेते हो. आप बस दिमाग में गुस्सा आया तो आप कुछ काम ले लेते हो. एक बंदी का तो हम देख ही रहे हैं कि रिसेंटमेंट के कारण शी हैज़ टेकिंग डिसीजन.
तो वो चीजें हैं। तो एनर्जी जो इस एटीट्यूड जो इस रिलेशनशिप का क्या है, बहुत ही ऐसा बोलते सकते हैं कि इट इज स्कैटर्ड। बहुत ही ज़्यादा कुछ कुछ हो रहा है इनके रिलेशनशिप में, गॉसिप है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये लोग भी एक दूसरे को आई थिंक पैसिव एग्रेशन शो कर रहे हैं। आई थिंक सो, यू नो, दिस पीपल आर, दिस टू कपल, दिस कपल इज शोइंग पैसिव एग्रेशन टू ईच अदर। दैट इज व्हाट आई एम पिकिंग अप इंट्यूटिवली। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ, यू नो, लाइक एक दूसरे को नीचा दिखाना है, इस तरह से, इस तरह की चीजें हैं जो कि रिसेंटमेंट से आप फील कर सकते हो। नाइट ऑफ सोर्ड इन रिवर्स इज अ लॉट ऑफ, जैसे कि यू नो, आई वांट टू विन, किसी भी कीमत पे यहाँ पे कोई इंसान जीतना चाह रहा है, उस तरह की एनर्जी है इस रिलेशनशिप की एनर्जी। देखो, रिलेशनशिप की एनर्जी तो नर्चरिंग होनी चाहिए, मगर नाइट ऑफ सोर्ड की रिवर्स एनर्जी में ये इस रिलेशनशिप की एनर्जी बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गई है। ऐसा एनर्जी है रिलेशनशिप का कि इसमें या तो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, हराना चाह रहे हैं, कोई जीतना चाह रहा है, इस तरह की एनर्जी आ गई है। बट सबकॉन्शियस में कैसा एनर्जी है? सबकॉन्शियस में देखो अभी भी 2 ऑफ वॉन्ड्स है। इनकी एनर्जी 3 ऑफ कप्स कॉन्शियस लेवल में क्यों आया है? 3 ऑफ कप्स, अभी क्या हो रहा है इनके रिलेशनशिप में? इनके रिलेशनशिप में 3 ऑफ कप्स कॉन्शियस लेवल पे, 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे। लेट्स पुल सम क्लैरिफायर्स। ओके गाइस, सो वन थिंग आई विल टेल यू, अभी तो हमने बहुत ही हैवी एनर्जी को डिस्कस किया। वन थिंग दैट यू शुड नो इज गोइंग फॉरवर्ड, हायरोफेंट का कार्ड है विच इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। इट इज लाइक अ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इन द रिलेशनशिप, और ये पूरा पॉजिटिव है और अपराइट है। तो इवन दो थिंग्स लुक लाइक इट इज वेरी चैलेंजिंग, एंड यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड और भी चैलेंजिंग होगा विथ 5 ऑफ वॉन्ड्स, वेयर मोर पीपल विल कम इन एंड क्रिएट ड्रामा। ठीक है, अभी तो रिलेशनशिप अपसाइड डाउन हो ही रहा है और ये सारी चीजें हो रही हैं जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, लोगों को लग रहा है कि जस्टिस नहीं हो रहा है इनके साथ, या ये लोग जस्टिस नहीं कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के साथ, और काफी एक दूसरे को नीचा दिखाना है, ये सारी चीजें किसी भी कीमत पे जीतना है, इस तरह की एनर्जी हो गई है इनके रिलेशनशिप की। और गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप जैसे कि मान लो कि अभी मैंने टाइम ड्यूरेशन तो देखा नहीं है इसका, इस रीडिंग का कि क्या हो रहा है, तो अब मुझे पता नहीं कि ये कब किस टाइम फ्रेम पे है, ये नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने नहीं बोला था कि इस महीने का बताओ या इस साल का बताओ। सो टाइम फ्रेम आई कैन नॉट नो, बट गोइंग फॉरवर्ड इट विल बिकम मोर कॉन्फ्लिक्टिंग लोगों के कारण। बट लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप इज बिकमिंग ब्यूटिफुल एंड पीसफुल रेजोल्यूशन हो रहा है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स मिल रही है रिलेशनशिप को। ओके, ये चीजें हैं जो कि एस ऑफ वॉन्ड वाले मेरे प्रेडिक्शन से अगेन बैंग ऑन होगा अगर ये आगे जाएगा तो। ओके, तो यहाँ पे हमको कुछ देखना होगा कि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स है। एग्जैक्टली, नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स तो यही है ना कि रिलेशनशिप जो काफी, नाइट ऑफ कप्स में क्या होता था, अब देखो रिलेशनशिप में क्या था, चीजें इनके लाइफ में कुछ दिनों से तो काफी चीजें ठीक नहीं चल रही थी ना रिलेशनशिप में। नाइट ऑफ कप्स नहीं था, लाइक दे वर नॉट अलाइनमेंट, पर चीजें उतनी बुरी भी नहीं थी, अभी भी लव शव का थोड़ा एनर्जी था। लेकिन अब क्या हुआ है कि ये लव की एनर्जी थी पास्ट में, लेकिन अब क्या है कि उस बंदी ने भी अब बोला कि अब जब तक वो बंदी दिमाग में थी, कंसिडर कर रही थी, लव था, लेकिन अब है कि उसके दिल में रिसेंटमेंट है और वो इन सारी चीजों को भूल नहीं पा रही है, माफ नहीं कर पा रही है। तो उसने बोला कि मुझे ये सब को साइड में रखना है और क्या करना है, मुझे अपने, आई हैव डिसाइडेड दैट आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट दिस, आई वांट टू मूव ऑन। एंड पर रिसेंटमेंट के कारण जुड़ी भी हुई है, भूल भी नहीं पा रही, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, वो सारी की वो गुडमुड एनर्जी है, वो गुडमुड एनर्जी मैं फील कर रही हूँ क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है कहीं ना कहीं पे। तो यहाँ पे तो फिर भी एनर्जी थी, लेकिन जब उसने इसको ही साइड में करके रख दिया है और तो वो भी अपसाइड डाउन हो गई है, वो शी डजंट वांट्स टू कंप्लीट दिस रिलेशनशिप या फिर जो भी है अपसाइड वर्ल्ड है। अब क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी इस रिलेशनशिप से चली गई है, तो एटीट्यूड में क्या आ गया है, ऑब्वियसली जहां पे पहले प्यार था रिलेशनशिप में, अब वहां पे क्या आ गया है, कंपटीशन आ गया। तो यहाँ पे एनर्जी देखो कैसे 360 डिग्री चेंज हुई है। पहले नाइट ऑफ कप्स था,
ये भी इमेच्योरिटी होती है, बट खैर जो भी है ये लव से भरा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, ये नाइट ऑफ कप्स जो है, हवा पहले तो ही मिसअलाइंड था, अब ये सीन से भी बाहर निकल गया है। और अब इस रिलेशनशिप की एनर्जी या एटीट्यूड क्या हो गई है, कंपटीशन की है कि मुझे जीतना है। तो आप देख रहे हो कि कैसे ये पहले तो अपसाइड हुआ, पहले तो ये ऐसा होगा जब ये लोग बहुत ही प्यार में होंगे, फिर धीरे धीरे लोगों के कारण ये अपसाइड डाउन होना हुआ। अब क्या हुआ कि ये सीन से निकल चुका है, और कौन आके इसका जगह ले लिया है, ये एटीट्यूड में, इस रिलेशनशिप के एटीट्यूड में नाइट ऑफ सोड आ गया है, और इसने इन दोनों को बहुत ही कॉम्पिटिटिव बना दिया है, जहां पे ये लोग एक दूसरे को एक दूसरे को ही हराना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। बट ये कॉन्शियस चीजें हैं, कॉन्शियस लेवल पे आप देखोगे, सब कॉन्शियस पे नहीं है। सब कॉन्शियस में अभी भी देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, इसीलिए मैंने बोला कि सुम्बुल की एनर्जी अभी भी बहुत कंफ्यूजिंग है। हालांकि वो कुछ लेवल पे 3/4 क्लियर हो गई है कि उसने कुछ डिसीजन ले लिया है इस बंदे को लेके, लेकिन अभी भी उसकी कुछ गुड मूड एनर्जी है। और गुड मूड एनर्जी का मतलब ही है कि सबकॉन्शियस लेवल में अभी भी 2 ऑफ वॉन्ड्स है, अभी भी शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग। तो बेसिकली जो है ना, वो अपने दिल को, उसकी एनर्जी ये है कि resentment है for whatever this guy has said said in the interview. She has resentment and she doesn't wants to forgive him for that, but she has liked him and all that. So she is really, यहाँ पे भी she is looking forward to this relationship. Subconscious में अभी भी she is looking forward to relationship, and we manifest things from our subconscious, right? So आप समझ सकते हो कि लेट फ्यूचर में इसीलिए इनका एक हैप्पी एंडिंग आ रहा है। ये हैप्पी एंडिंग हमने एक छोटा सा रीडिंग किया था, जहां पे मैंने बोला था कि एस ऑफ वॉन्ड, एक स्पिरिचुअल बिगिनिंग इनके लाइफ में जरूर आएगा। अब उस एस ऑफ वॉन्ड है, एक स्पिरिचुअल बिगिनिंग जरूर आएगा इनके लाइफ में। दिस इज अ हायरोफेंट स्पिरिचुअल कार्ड है, इट इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, ओके। हालांकि वो एस ऑफ वॉन्ड था, तो अपॉर्चुनिटी तो आएगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी का यूज हमें अपने इंटेंशन और इंस्पायर्ड एक्शन से करना पड़ता है, राइट? तो आप उस अपॉर्चुनिटी को जाने भी दे सकते हैं, लेकिन इस हायरोफेंट का कार्ड का आना ये बता रहा है कि लुक्स लाइक दे विल रियली कम टुगेदर, व्हाट इज हैपनिंग इन देयर रिलेशनशिप, ओके। ऑल राइट, रिलेशनशिप में क्या हो रहा है यहाँ पे? रिलेशनशिप में ये हो रहा है कॉन्शियस लेवल की दोनों अपने अपने दोस्तों के साथ बिजी हैं। कॉन्शियस लेवल में तो यही हो रहा है, आपस में इनकी कंपटीशन बन गई है, एक दूसरे को हराना चाह रहे हैं लोग, ठीक है, नीचा दिखाना चाह रहे हैं, मे बी, आई डोंट नो। और कॉन्शियस लेवल में दोनों पार्टी अपने फ्रेंड सर्कल में बिजी है। वाओ, तो ये तो हो गया। गोइंग फॉरवर्ड मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने वाला है, बट लेट फ्यूचर में चीजें ठीक होंगी, यही तो दिख रहा है। यहाँ पे भी देख रहे हो, ये जो फ्रेंड पार्टी है ना, ये इनके काम के ही लोग के पार्टी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो लोगों फ्रेंड सर्कल में बिजी। चलो भैया, ये हो गया। So we don't have to pick this card, that because we already solved the problem and brought in the clarity. And what we need to do is now that हम यहाँ से कुछ कार्ड ले लेंगे. What is happening in their relationship, dear angels? We thank you so much for the guidance coming for the fans. Thank you, thank you, thank you so very much. All right, surrender to the spirit. Exactly. फाहमान ने भी सब चीज़ कोशिश करके देख ली, और इस लड़की ने भी काफ़ी फाहमान के बारे में सोच के देख लिया, पर वो अपने आप को मना नहीं पा रही है, वो भुला नहीं पा रही है. शी इज़ नॉट लाइकिंग व्हाट दिस गाय हैज़ डन. तो अब जब दोनों पार्टी ने हर चीज़ कर लिया है, तो तुम स्पिरिट पे छोड़ दो. बॉम, व्हाट डिड आई टेल यू. ये देखो, सरेंडर टू सक्सेस. डिवाइन टाइमिंग में जब ये लोग अपना स्पिरिचुअल लेसन्स कर लेंगे और ईगो से काम नहीं लेंगे, तो ये हायरोफेंट भी आ जाएगा एंड एक हैप्पी टाइम आ जाएगा इनके लाइफ में. That is what it is. Let me read this for you. You are ready to experience abundance. Don't look back at previous roadblocks. जी हाँ, roadblocks. Don't look back at previous roadblocks or difficulties. Leap into exciting new world of possibilities. एक नया वर्ल्ड ये लेके आ रहा है. ये वर्ल्ड उल्टा हो गया ना, नया वर्ल्ड ये सक्सेस कार्ड लेके आ रहा है, और ये हायरोफेंट तो हमें आया ही है. एंड हियर इज द कंफर्मेशन. लेट्स सी व्हाट हैपेंस.
Yeah. So we will just pull the card from my mermaid deck and we will wind this up. ये वाला कार्ड उस समय भी आया था ना, उस डेक से भी आया था. Yes, ये एनर्जी शायद आना चाह रही है, बट इट विल कम इन डिवाइन टाइमिंग. Thank you, dear angels, for the divine guidance and blessing coming for this couple at this moment. We thank you so very much. Music for manifestation. Yes, yes, yes. Have faith. Did I tell you that? This is divine guidance. This is beyond your 3D understanding, what you are seeing in the 3D. म्यूजिक फॉर मैनिफेस्टेशन क्या बोल रहा है? मैंने क्या बताया कि सबकॉन्शियस लेवल पे ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं. दे आर लॉन्गिंग फॉर ईच अदर. दे आर, जैसे होता है ना कि आप खिड़की पे खड़े होकर देखते हो वो आया कि नहीं, वो आया कि नहीं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. बोथ ऑफ देम आर काइंड ऑफ वेटिंग फॉर ईच अदर. बट यस, अब चीज़ें गलत हो गई हैं, वो फॉरगिव नहीं कर पा रही है. ये हो रहा है. यहाँ पे देखते हैं टू मैनिफेस्ट रैपिडली. क्या ये यहाँ पे देख के लग रहा है कि किसी को खोज रही है, या ये बंदा किसी उसको देखो यहाँ पे ये बंदा इसको देख रहा है. ही इज वेटिंग फॉर हर एंड शी इज वेटिंग एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुली, राइट? दिस इज व्हाट इट वाज. नो, दे आर वेटिंग फॉर ईच अदर. डू यू सी दिस? ये बंदी इधर नहीं देख रही है, ये बंदी इधर देख रही है इंटरेस्टिंगली, और ये बंदा भी आगे ही देख रहा है. एंड इन टर्न बोथ ऑफ देम आर सीइंग ईच अदर. बोथ ऑफ देम आर वेटिंग फॉर ईच अदर. ओके, परफेक्ट. तो जब यू आर लॉन्गिंग फॉर ईच अदर, विच लुक्स लाइक यू आर लॉन्गिंग फॉर ईच अदर, इवन दो तुम अपने फ्रेंड्स में बिजी हो, तुम लोग अपने फ्रेंड्स में ही मस्ती करने में बिजी हो, एक दूसरे को हराना चाह रहे हो, जिस सामने में हराना चाह रहे हो, राइट? बट वेट तो एक दूसरे का ही कर रहे हो. तो व्हाट शुड यू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब तुम सबकॉन्शियस में ये चीजें हैं तो मैनिफेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि पॉजिटिविटी अंदर में तो पॉजिटिविटी है, वो जबरदस्ती का दबाने से कुछ नहीं होगा. सबकॉन्शियस में अगर हेट्रेट है, आई मीन ऊपरी लेवल पे यू आर हेटिंग, यू आर हैविंग रिसेंटमेंट कि हाउ डे यू से दैट इन अ इंटरव्यू, आई कैन नॉट फॉरगिव यू, आई विल गिव यू पनिशमेंट, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. ऊपरी लेवल पे है, पर अंदर का जो प्यार है सो तो है, उसको बदल नहीं पा रही है. यहाँ पे क्या आ गया? यस, वो मैनिफेस्ट करना चाहती है. शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम, शी वॉन्ट्स टू मैनिफेस्ट हिम. देखो क्या है, टू मैनिफेस्ट रैपिडली, थिंक अबाउट योर डिजायर, चैंट, हम, सिंग, प्ले म्यूजिक. तो यहाँ तो है, और ये सारी चीजें एक ही चीज को बता रही है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट व्हाट इज इट? हैव फेथ. यहाँ पे क्या था? डिसअपॉइंटमेंट है, तो डिसअपॉइंटमेंट है, लॉस है, ग्रीविंग है कि ये रिलेशनशिप तो अब मुकम्मल नहीं होगा, फुल सर्कल नहीं आएगा. तो यूनिवर्स ने क्या बोला है? हैव फेथ, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन विल द यूनिवर्स turn the cards and create magic in your life. This is what it is, spiritual magic. Ace of Wands is all about spiritual magic flowing through the divine and creating the magic, right? So that is what it is. And ये success का भी कार्ड आ गया. और कितना confirmation चाहिए आप लोगों को, और कितना confirmation चाहिए? तो जब जो होना है तब वो होगा. This is what it is. Very loud message. All right, guys. So this is your guidance. Thank you so much for watching, and I will see you again. Take care. Bye for now.